Okay. I hope I am live now, and I hope the audio is clear. No disturbances as such, and I think we are good to go ahead, guys. Kindly just confirm the AV if you all can hear me properly. If the audio and video is fine. Very important section for you all. I'm taking because now IFP is over, and a lot of people are now going for ZAT. In this video, we'll talk about ZAT in a detailed manner. So, if you have any questions, I'll pick them up step by step. So, hang in there for some time, and we will start with ZAT ka. The total planning for the next 30 odd days that we have. We'll talk about the cutoffs, we'll talk about the important areas. We'll also talk about how it differs from CAT and what important things that one has to do if one really want to sort of crack ZAT 22. पहली बात ZAT के बारे में बहुत सारी चीजें कही जाती है कि यार बहुत टफ एग्जाम वगैरह है. Indeed, वो CAT से भी थोड़ा टफ है. I'm going to be very honest with you. But at the same time, this exam is predominantly based on a strategy. जैसे CAT है, IFT है, ZAT है, SNAP है. So all the aptitude exams are predominantly based on strategy. ये हमें CAT में भी पता चला था. So from now onwards, if you look at ZAT, do not think about ZAT कि यार ये बहुत ज़्यादा tough exam है. Think about from this perspective कि यार अगर मैं ठीक ठाक से strategy लगा लेता हूँ, अगर मैं important areas बराबर से कर लेता हूँ, तो मेरा ये exam निकल सकता है. And that is where ZAT actually comes a little bit handy when you actually know, you know what, this is the exam that I can probably, let's say, crack till 99 percentile or plus plus. Okay, we'll move ahead with the section 1. Rather, we will talk about the first slide. It's a very simple thing. जहाँ तक ZAT का सवाल है, it's going to be very simple thing. Test structure goes like this. It's VARC. By the way, ये VA और logical reasoning कहा जाता है, but actually it's not even logical reasoning. It's predominantly critical reasoning. तो थोड़ा अलग फॉर्मेट में आता है, थोड़ा GMAT टाइप पे चलता है. If you talk about ZAT, you have around about 26 questions in VRC. You have 21 questions in decision making. You have 28 questions in quant and DI. And then you've got around about 25 questions in GK. जहां तक GK का सवाल है, GK काउंट नहीं होता है बेसिकली. एक्सएलआरआई के लिए GK काउंट होता है. मोस्ट probably ये वो सीन होता है जहाँ पे when you have a tie, or if they want to kind of choose the best of the candidates, they probably go for GK का score, but nothing as such. ये परसेंटाइल में कभी कैलकुलेट नहीं होता है. तुम्हारा जो परसेंटाइल है वो खाली 3 सेक्शन से निकलेगा, which is VRC, decision making, quants and DI. Period. Right? Moving ahead. Those who are joining me a little late, kindly just hit like so we can have maximum students joining in. यहाँ पे एक थोड़ा सा क्रक्स है. If you get a question correct, you get plus 1 mark. If you get questions wrong, you get 0.25 as a negative marking. 165 minute is what we are looking at. But एक चीज है, if you leave 8 questions, you are allowed to leave 8 questions out of the 75 questions, by the way. Total number of questions are 100. So from those 75, when you leave 8 questions, वहां पे कुछ नहीं होता. But 8 के बाद, every question that you leave will cause you 0.1 का negative marking. इसका impact इतना ज्यादा होता नहीं है अगर आप एक अच्छा लेवल पे यहाँ अनुभव. इसका impact इतना ज्यादा होता नहीं है अगर आप एक अच्छे लेवल पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स करते हो. बट out of 75 you really cannot go beyond 60 or you really cannot go beyond 55. वहां तक जाते जाते भी एक्चुअली नाक में दम हो जाता है. इट्स अ वेरी स्ट्रेटेजी बेस्ड एग्जामिनेशन जहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो फाइन. उत्कृष्ट शुक्ला फीलिंग एग्जॉस्टेड. बेटा ये तो अभी चालू हुआ है, अभी कैट हुआ है, अभी आईटी आया है, बहुत दूर तक चलना है. जैट है, स्नैप है, एनमैट है, सीमैट है. जब इतनी सारी एग्जाम्स आप दोगे फिर यू विल हैव वन डे जहाँ पे यू विल गेट अ टॉप 20-25 बी स्कूल कन्वर्टेड. एंड मेरे ख्याल से जितनी भी अभी मेहनत अभी आपने करी है, जितना भी आप एग्जॉस्ट हो चुके हो, जितना भी अभी आप डेल्टा दोगे अपनी मेहनत के लिए, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी वर्थ. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स एवरी ईयर. डोंट वरी. फाइन. सो वेरी सिंपल. 0.1 मल्टीप्लाइड बाय आप 20 करो, 25 क्वेश्चन करो, उसका इंपैक्ट इतना ज्यादा होता नहीं है. बट ऐसा नहीं है कि हम 30-35 क्वेश्चन छोड़ दे. सो that's not going to be the case. So we'll tell you, मैं बताऊंगा आपको कि इसको कैसे बकायदा बाइज्जत अच्छे से आप इसको पुट अप कर सकते हो अगर आपकी स्ट्रैटेजी सही है तो. एक प्रॉब्लम होती है इस एग्जाम में, इट्स इन द मॉर्निंग यार. 9:30 AM से लेकर 12:30 AM होता है, तो सुबह उठने की आदत डाल दो. मेरे ख्याल से जो स्लॉट वन के बच्चे हैं कैट वाले, आपके लिए फायदा है. नाउ लेट्स गेट अहेड विद द वर्बल एबिलिटी एंड लॉजिकल एबिलिटी. राइट गाइस, व्हेन यू टॉक अबाउट वर्बल, predominantly it's reading comprehension. It's dominated by reading comprehension. You will be expected to have around about 4 reading comprehensions. Para jumbles आता है, critical reasoning आती है, poem, RC, vocabulary, grammar and reasoning. Now if you talk about your VRC,
यू विल बी हैविंग अराउंड अबाउट 26 क्वेश्चंस। पोएम एक आते हैं या फिर दो आते हैं, बट रीडिंग कॉम्पिटिशन विल बी predominantly it is going to be the high level। अब आरसी में यहाँ पे बड़े पंगे होते हैं। अब बच्चे कहते हैं सर आरसी बड़े टफ आते हैं, लेंदी आते हैं, नहीं समझ में आता, स्कीमा टाइप्स आरसी आते हैं, क्रिटिकल रीजनिंग वाले आरसी आते हैं, विच इज ओके, विच इज ओके, राइट। बट आरसी को आप टैकल कैसे करोगे? कि अगर मैं कैट के बारे में बात करूं, मुझे नहीं लगता कि लेवल उसके ऊपर जाएगा जिस तरीके से इस साल के तुम्हारे कैट की जो रीडिंग कॉम्पिटिशंस थे, कहीं से मोरलेस सेम ही रहेगा। गुड थिंग अबाउट जैट, अगर पुराने जैट अगर आप जाके देखोगे तो थोड़े टफ लेवल पे होते हैं, बट आरसी में भी आपको सिटर क्वेश्चन मिलेंगे जो एक्चुअली आपका स्कोर थोड़ा बूस्ट कर सकते हैं। मोस्ट ऑफन यहाँ पे देखा जाता है रीडिंग कॉम्पिटिशन में योर क्वेश्चंस आर जेन्युइनली इन्फ्रेंस बेस्ड। तो जहां पे जैट के बारे में मैं बात करूंगा, यस आई विल अग्री दैट योर क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी जेन्युइनली इन्फ्रेंस बेस्ड, बट वहां पे भी उसको क्रैक करने का एक आइडिया होता है, उसकी क्रैक करने की एक स्ट्रेटेजी होती है। You can read the whole reading comprehension. Even if you're a good reader, voracious reader, you love reading, आप पूरा आरसी पढ़ के नहीं जा सकते हो। भले आपने पढ़ लिया, आरसी थोड़ा सा नॉच अबव होने की वजह से, पर मुझे लगता है 2020 एंड 2021 का जो कैट है उसके लेवल का आएगा, 19 का भी लेवल 19 की लेवल से थोड़ा कम आएगा, बट मोरलेस उसी लेवल पे चलेगा। तो आरसी में इफ यू नो ना कि मुझे ये पार्ट छोड़ना है, ये पार्ट पढ़ना है, आई थिंक लाइफ इज सिंपल, लाइफ इज डुएबल। जो मैंने आपको एक्चुअली कैट लेवल पे पढ़ाया था कि ऑलवेज आप रीडिंग कॉम्पिटिशन को एक फॉर्मेट पकड़ के चलना, पूरा पढ़ोगे, पूरा जानोगे, सोचोगे तो यार उसमें टाइम चले जाएगा। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस एग्जामिनेशन इज दैट यू कैन शफल। हाँ, यू कैन शफल, आराम से यू कैन शफल। ऐसा नहीं कि 40 मिनट इसको करो, 40, बिल्कुल भी नहीं। आप अपना टाइम लो, you take your own bloody good time, it's a 3 hours examination, you've got around about 100 question, I would say you've got around about 75 questions to do। आपके 25 क्वेश्चन आने वाले हैं जनरल नॉलेज से, उसमें से भी यार 10-12 क्वेश्चन आपके निकलने हैं, वो भी शॉर्ट में आपको बता दूंगा कहाँ कहाँ से निकलने। जो मैंने आईआईटी के लिए बोले थे वो सब सही हुए थे। जीके अगर मैंने 10 या 12 मिनट में कर लिया, अगर मैंने 15 मिनट में भी कर लिया ना जीके, तो भी मेरे पास यार राउंड अबाउट 2 घंटा 45 मिनट्स बचते हैं इस पूरी एग्जाम को खेलने के लिए, राइट। तो अगर आप देखोगे आपके पास जो टाइम है वो बहुत ज्यादा होता है, एंड बिकॉज ऑफ विच दिस एग्जाम समटाइम्स टर्न्ड आउट टू बी अ सॉर्ट ऑफ एन इजी एग्जाम, प्रोवाइडेड आपकी स्ट्रैटेजी सही बैठनी चाहिए। आप अगर यहाँ पे वापस टाइमर लगाओगे, मैंने आईएफटी में कहा था बेटा टाइमर वाइमर बहुत पुरानी चीजें हैं, बाबा आदम के जमाने की है, वो आजकल काम नहीं करते, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वही चीजें जाती है, मतलब जो पहले 50-20 साल से चल ही रहा है कि यार इसको इतना टाइम लगाओ, उसको उतना टाइम लगाओ, तो टाइमर से नहीं चलता है। The only thing that will help you here is score optimization strategy, जो मैं ऑलवेज कहता हूं। तो अगर आप SOS स्कोर ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटेजी के साथ चलते हो, you'll be able to knock off good number of questions and score will be pretty good। So RC ठीक है, there is a little bit level that you need to manage। RC में आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पुराने पेपर कर लोगे तो भी आप सॉर्टेड, ऊपर सेटर क्वेश्चन आते हैं वो स्पॉट करना जरूरी है। तो स्कोर बूस्टिंग एरिया विल बी पैराजम्बल, critical reasoning you will get questions straightforward, sometimes it is like 2 liners, you have assumption, you've got conclusion, you've got inference based questions, उसको भी डील करने का एक तरीका होता है, so we'll talk about it। पोएम्स के बारे में बात करेंगे। यार पोएम्स के बारे में अगर मैं बात करूं, honestly I'm not a big fan of poems। I myself have never attempted poems in that। So what I would do if I really want to attempt sort of poems, पहली बात अगर थोड़ा बहुत समझ में आए, because this is going to be a gray area, this is going to go bouncer, तुम पोएम ज्यादा नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं ऑलवेज कहता हूँ कि तुम्हारा आरसी तुमको ज्यादा हेल्प करेगा। अभी पोएम थोड़ा फ्लैशी लगता है, तो कूल लगता है, तो हमें लगता है कि यार पोएम आएगा, बट इट्स नॉट गोइंग टू बी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाला लेवल। पोएम इज एक्चुअली गोइंग टू बी रियली रियली टफ टू सॉर्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंड, राइट। तो पोएम आप थोड़ा सा यहाँ पे अवॉइड मार सकते हो, सिंपल सी बात है ना यार, जो चीज मुझे डी डे पे करनी नहीं है उस वो चीज पे मैं प्रैक्टिस भी क्यों करूं, राइट। और अगर आपकी पोएम करना चाहते हो, अगर पोएम इजी है आप वैसे भी कर लोगे, 2-3 बार पोएम पढ़ो, 2-3 बार क्वेश्चन पढ़ो, इट विल मेक लिटिल बिट सेंस, यू कैन नॉक ऑफ 1 or 2 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं पोएम के, उससे ज्यादा नहीं। वोकैबुलरी के बारे में अगर हम बात करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स एनालॉजीज ये आती है, बट ट्रस्ट मी जहां तक वोकैबुलरी का बात है, आई वुड नॉट से दिस इज गोइंग टू बी ऑन अ वेरी हाई लेवल। मुझे लगता है एनमैट से भी थोड़ा बहुत इजी आता है, बिकॉज़ लास्ट ईयर मैंने खुद वाईटी पे सेशंस कराए थे इसके। तो अगर थोड़ा वोकैबुलरी पे फोकस करते हो, रूट बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, आपको थोड़े बहुत हाई फंडा वर्ड्स भी मिल जाते हैं, बट इट्स ऑलवेज गुड टू अवॉइड देम, बिकॉज़ आज भी अगर आपने देखा होगा आईएफटी में राउंड अबाउट 11 से 12 क्वेश्चन आपके ओनली केम फ्रॉम द वोकैब वाला पार्ट, तो मुझे लगता है थोड़ा अवॉइड है। Another score boosting session for you would be grammar and sentence correction। यार प्रिडोमिनेटली तुम्हारा चलता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के ऊपर, पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर, तुम्हारा पंक्चुएशन टाइप लेवल पे एक चलता है, टेंसेस के ऊपर एक चलता है,
तो यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं कि जो आपको आउट ऑफ वर्ल्ड करना है। अगर आप स्नैप एनमैट कैट के लिए कैट थोड़ा छोड़ दो, बट अगर आपने स्नैप एनमैट के लिए डैशबोर्ड में जो 12 वीडियोस है अगर आपने उतने भी कर लिए हैं तो भी यार बहुत ज्यादा आपको फायदा होगा, बिकॉज ग्रामर का लेवल कुछ इतना ज्यादा नहीं बनाते हैं। ठीक है, जैट का हाइप है, मैं मानता हूँ जैट इज वेरी टफ लेवल सॉर्ट ऑफ एन एग्जाम, कैट से भी जैट ज्यादा टफ है, मैं मानता हूँ, बट वहां पे दो तीन चीजें जो हमें समझनी है। That is tough because of not all the sections in the ZAT. That is tough because of couple of segments in the ZAT. Reading comprehension makes it very tough. तुम्हारा quants kind of makes it little bit more tough. GK की वजह से भी ये tough होता है, and there is something called as decision making because of which it gets little tougher. But अगर मैं देखूँ verbal and logical ability के बारे में अगर मैं बात करूँ, so it is not that tough. It's sort of doable. Moving ahead, you have another section that's called as quants and DNR. As I say all the time, arithmetic, algebra, geometry are going to be dominating even in ZAT. लास्ट ईयर का तो ZAT था वो एक्चुअल में बहुत टफ था। बच्चों ने कहा कि सर ये ZAT बहुत ज्यादा टफ था, ये 2020 से भी ज्यादा टफ था। क्वांट एकदम हद पार आया था, अलग लेवल पे क्वांट था। बट अगेन जो हमने IFT में देखा है वही आपको ZAT में भी दिखेगा। गाइस ये किसी भी एप्टीट्यूड का ना एक मंत्र है, एक बेसिक रूल है। अगर आपका लेवल ऑफ डिफिकल्टी इस लेवल पे जाता है, आपका अटेम्प्ट इस लेवल पे आना चाहिए और आपकी एक्यूरेसी यहाँ पे जानी चाहिए। बाय द वे बाय डिफॉल्ट है, अगर एलओडी यहाँ पे है, अगर बहुत टफ एग्जाम है, अगर मैं अटेम्प्ट थोड़े कम करता हूँ जो तुम्हें करने ही पड़ेंगे क्योंकि तुम ज्यादा क्वेश्चन नहीं लगा सकते हो। अगर आप ज्यादा क्वेश्चन लगाने की फिराक में चले भी गए तो अगर आप ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे यार तो आपकी नेगेटिव मार्किंग ज्यादा होने वाली है। नेगेटिव मार्किंग से आपको थोड़ा बचना है। तो आपकी अगर मैं बात करूं अटेम्प्ट्स अगर आप कम रखते हो, आपकी एक्यूरेसी बाकायदा बाइस बढ़ने वाली है। अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, व्हाटएवर यू हैव डन on CAT level, it should give you a good push as far as ZAT is concerned. But एक चीज याद रखना, ZAT में बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, एप्लीकेशन लेवल पे आते हैं, बट कुछ कुछ क्वेश्चंस लिटरली बहुत ज्यादा टफ होते हैं। So if you are my student, you need to kind of go back to the revision of basic and focus a lot on advanced and challenger level, because ZAT का quants is going to be advanced and challenger level. Challenger level being the toughest of all. उसके बाहर का कुछ नहीं आता। चैलेंज लेवल इज ZAT का भी थोड़ा सा वन लेवल है। तो ये अगर तीन एरिया अगर आपने बकायदा बाइसेट कर लिए, इट शुड हेल्प यू लॉट। नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस आएंगे, रिमाइंडर्स वगैरह आएगा यहाँ पे। जो टिपिकल क्वेश्चंस आते हैं HCM LCM वगैरह के जो भी क्वेश्चंस है वो यहाँ पे आते हैं, फिटर होते हैं, डुएबल होते हैं। प्रोग्रेशन एंड सीरीज इज आल्सो समथिंग दैट इज कीन ऑन आस्किंग। सेट थ्योरी, वेन डायग्राम, पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी, इसका भी वेटेज अच्छा खासा होता है। अगर मैं ZAT के क्वांट्स के बारे में बात करूं, DI का जो आपका जो लेवल है, इट्स नॉट गोइंग टू बी DRR, इट्स गोइंग टू बी ओनली DI। जहां तक DI का लेवल है, आपके दो सेट आते हैं DI के, 3 questions each, so you have round about 6 questions in DI and you will have 22 questions. Data sufficiency will not come every year. Data sufficiency आया तो आया, but again you cannot really define कि data sufficiency आएगा ही आएगा। आया तो ठीक है, नहीं आया तो it's not going to be there. So DS is not something that will be हर साल का वो मेहमान है, कभी आया तो आया, कभी नहीं आया तो नहीं आया। It is as good as one or two मेरे ख्याल से थोड़े से जो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट होते हैं, जैसे रीजनिंग बेस्ड स्टेटमेंट कभी कभी आ जाता है तुम्हारे VRC में, पता नहीं चलता कि यार ये इसको मैं किस फॉर्मेट में डालूं, ये ग्रामर में डालूं या मैं क्रिटिकल रीजनिंग में डालूं। सो समटाइम्स यू हैव एन आउटलायर, सो डोंट रियली हैव टू वरी अबाउट इट। एंड व्हाट इज डिसीजन मेकिंग? इट्स अ कॉम्बो ऑफ योर क्वांट्स एंड DI, सो यू नीड अ कंसेप्चुअल नॉलेज फॉर दैट। तो अगर आप क्वांट्स कर लेते हो, डिसीजन मेकिंग शुड बी फाइन फॉर यू, रादर डेटा सफिशिएंसी शुड बी फाइन फॉर यू। आई एम सॉरी फॉर दैट। सो DS के बारे में ज्यादा लोड मत लेना, डुएबल है, पॉसिबल है, बट अगेन you have so many questions to do यार, you've got round about 28 questions to do। अगर तूने 2-3-4 क्वेश्चन छोड़ भी दिए, doesn't really matter, so don't freak out कि यार ये भी आ सकता है, वो भी आ सकता है, because again you have to control yourself somewhere कि मैं पढ़ाई भी करूंगा, मैं कितना करूंगा, मैं पूरा का पूरा तो चीज नहीं कर सकता, because again this is applicable for your ZAT also, it was applicable for CAT, it was applicable for IFT also, and I all the time say on YouTube कि भाई मेरे 100% पढ़ाई मत करो, 100% पोर्शन मत करो। You got to be very specific and you got to be very choosy कि जब मैं एक एग्जाम को अपीयर करूंगा यार मैं पकड़ के चलूंगा कि ये मुझे आता है तो मैं ये करूंगा, ये मुझे नहीं आता है आई एम नॉट गोना डू इट, पीरियड। अगर आप बात करते हो सर मेरे को ज्योमेट्री नहीं आता, आई हेट ज्योमेट्री, आई सक एट ज्योमेट्री, मत कर, बट मेक इट अ पॉइंट दैट तू ट्रेड ऑफ किसी और के साथ कर। सर अब ये ट्रेड ऑफ का क्या फंडा है, ये कुछ हाई फंडा चीज आप बात कर रहे हो, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग बेटा, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। अगर तुझे ज्योमेट्री नहीं आता ना तो एटलीस्ट सेट थ्योरी कर, वेन डायग्राम कर, पीएनसी कर, प्रोबेबिलिटी कर, कुछ तो कर पर कर। अगर ज्योमेट्री नहीं आता है, कौन सी लेवल पे नहीं आता है पहले वो डिफाइन कर। बेसिक नहीं आता, एडवांस नहीं आता, चैलेंजर नहीं आता, वो डिफाइन कर। सर बेसिक भी नहीं आता है, देन डू समथिंग एल्स। सर एडवांस और चैलेंजर लेवल नहीं आता, एटलीस्ट बेसिक कर, बिकॉज even though it's ZAT you will get sitter question
there is no doubt about it. That is number one. Number two will be, even if it's ZAT बहुत ज्यादा टफ होता है, वो लोग कहते हैं आपका जो टाइम है ना वो आपके पास बहुत ज्यादा होता है, because of which ये doable हो जाता है. So it's going to be around about 22 questions from QA domain and 2 sets, 3 questions each. DI is something you can bank on. DI is something that you can bank on. DI will be taught to you by Stanky, by Manohar, by Weber. They will be taking your DI, and DI थोड़ा variety level पे आता है. DI कभी कभी finance वाला भी आता है. DI थोड़ा सा doable है, DI थोड़ा सा manageable है. आप यहाँ से भी आपका स्कोर आराम से निकाल सकते हो, right? Decision making. According to me, this is one of my favorite, and this is the most doable, one of the most scoring section of ZAT. I have seen students really doing bad in verbal, getting around about 80 percentile, quant and DI around about 85-90, mostly engineers. But decision making, people score, बच्चा लोग score 99 plus. So decision making is a wholesale kind of a game for you, because ये आपका स्कोर बहुत ज्यादा ऊपर लेके जा सकता है. इसलिए मैं ऑलवेज कहता हूँ, अगर आपको ZAT को चलना है, and if not target in XLRI जमशेदपुर और XLRI दिल्ली, जहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ एंड मे बी XIM भी बाय द वे, जहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ की ज्यादा इंपॉर्टेंस है. अगर आप बाकी कॉलेजेस टारगेट करते हो, KJ, टैपनी, IMN ऑल दैट, देन बेटा ये डिसीजन मेकिंग एक ऐसा सेक्शन है जो आपका पूरा का पूरा कट ऑफ आगे लेके जा सकता है. इट माइट टेक यू अबव 90. So this is what you need to understand a little bit, right? So ethical dilemmas are going to be very simple कि यार ethical level पे चीजें आती है, आपने वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. बट ये जितना मैं कह रहा हूँ हिंदी में ऐसा स्टोरी टेलिंग वो उतना इजी नहीं आता है, थोड़ा प्रैक्टिस करना आपको जरूरी है. HR बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे एक सिनेरियो दिया जाएगा कि यार एक एम्प्लॉई है, वो नोटिस पीरियड पे है, वो काम नहीं कर रहा है, या फिर एक एम्प्लॉई है उसको हाइक नहीं मिली है 1 साल से, he has been the most hard working guy, तो HR ने क्या करना चाहिए, so and so forth. कुछ बिजनेस रिलेटेड भी आपको क्वेरीज सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं. स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग है, थोड़ा स्टार्टअप वार्टअप के ऊपर आता है कि मान लो एक बंदा है, उसने कुछ सॉफ्टवेयर का निकाला है, अभी उसको स्टार्टअप करना है, तो फंडिंग कहाँ से लाएगा, वो कहाँ कैसे अप्रोच करेगा, व्हाट विल बी द प्लान ऑफ एक्शन फॉर हिम, समथिंग लाइक दैट. बिहेवियरल लेवल पे होता है, पर्सनल ओरिएंटेड लेवल पे होता है. प्रॉब्ली यू कैन सी दैट देयर आर 2 एम्प्लॉइज आर नॉट गेटिंग हाइक, या फिर दोनों के जो भी उनका भी इवैल्यूएशन है उसमें कुछ तो झोल हुआ है, समथिंग लाइक दैट. कि किसी के घर में कोई बीमार है, उसको क्या रखना चाहिए प्रायोरिटी पे, अपनी फैमिली को रखे या अपनी जॉब को प्रायोरिटी पे रखे, किसी को कोई नई ऑफर मिल रही है और उसका यहाँ पे बॉन्ड है, शुड ही और शी ब्रेक दैट बॉन्ड एंड देन मूव टू दी अनदर रिक्रूटर और समथिंग लाइक दैट, राइट. ये चीजें नॉर्मल होती है, ये स्कोरिंग होती है, ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग होती है. 7 सेट्स आते हैं मेरे ख्याल से. यहाँ पे DI बेस्ड डिसीजन मेकिंग आता है, ये थोड़ा फाड़ लेवल पे जाता है और यहाँ पे थोड़े से बच्चों की प्रॉब्लम हो जाती है. दिस इज प्रेडोमिनेटली फाइनेंस डोमिनेटेड. प्रॉफिट एंड लॉस टाइप आता है, ब्रेक इवन एनालिसिस टाइप जैसा थोड़ा बहुत आ जाता है. LR बेस्ड आता है कभी कभार कैटेगराइजेशन का, जहाँ पे कॉस्टिंग वोस्टिंग के बारे में बात होती है, विच इज नथिंग बट योर फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कंपोनेंट्स और समथिंग लाइक दैट. ये पुराने आते थे, ये अभी आना बंद हो चुका है, इतना ज्यादा आता नहीं है. बट DI बेस्ड आर स्टिल गेटिंग कंटिन्यूड. और ये जो ऊपर वाले हैं दे आर वेरी सिंपल. यू जस्ट नीड टू यूज योर कॉमन सेंस कि ठीक है, अच्छा आपको रहना है, आपको अच्छी अच्छी चीजें सोचनी है और ऑलवेज आपको कंपनी के फेवर में ही बात करनी है. अगर मैं लॉजिकल रीजनिंग बेस के बारे में बात करूं, उसको थोड़ा अवॉइड मार सकते हैं. समथिंग लाइक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, समथिंग टू डू विद द पैंडेमिक और समथिंग टू डू विद लेट्स से अर्थक्वेक आ गया या फिर कुछ अनवांटेड सिचुएशन आ गई, देन हाउ यू विल रिएक्ट. मे बी you have a colleague and you have a situation at home and you want to go ahead, but then she or he gets the call that somebody has met with an accident, blah blah blah. Now he has to move, so will you be able to kind of support that person, or will you be able to cancel your leave and help him, or work on her behalf or his behalf. ऐसे थोड़े से क्वेश्चंस आते हैं, मेरे ख्याल से वो डुएबल होते हैं. कुछ हाई फंडा चीजें यहाँ पे होती नहीं है. You just need a good practice, and if you're a working professional, I think you will do very well in this section. Moving ahead, GK में बहुत सारी चीजें आती है, but life is easy because it's not going to be on a very high level. You get awards, you get organizations, you get heads of states. जो भी है महाराष्ट्र का, जो भी पंजाब का हेड कौन है, महाराष्ट्र कौन है, राजस्थान कौन, गुजरात एंड ऑल दैट. कैपिटल्स एंड करेंसी, these are doable. कैपिटल्स एंड करेंसी आर डुएबल. यहाँ पे 2 वीडियो मैंने डाले हैं, हर साल क्वेश्चंस वहां से निकलते हैं. YT पे जाके एक बार देख लेना. You would need, for the fact it's a sort of a business oriented exam, that में you would need to know business heads. और ये कुछ ज्यादा तोप नहीं होता है. इट्स अ वेरी कॉमन सेंस, एक लॉजिक, एक ट्रिक है यहाँ पे. लास्ट के 1 साल में जितनी भी कंपनीज है ना, उनके बारे में जो भी न्यूज आई है बस उसके बारे में बात करो. अगर मैं बात करूँ Amazon के बारे में, गोल्डमैन के बारे में, पेटीएम के बारे में, LIC के बारे में, ये जितनी भी कंपनीज है, जो एक्चुअली रिलायंस के बारे में बात करूँ, रिलायंस कैपिटल के बारे में बात करूँ,
जो एक्चुअली एक साल से तुम्हारे न्यूज में आई है, तो उनके सीएक्सओ के बारे में बात करो। सीएक्सओ मतलब सीईओ नहीं होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, बिकॉज वो बड़े फेमस होते हैं, तो वो सीएफओ के बारे में बात करते हैं। दे माइट आस्क यू अबाउट सीओओ समथिंग लाइक दैट। स्पोर्ट्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ओलंपिक्स थोड़ा रख लेना, बाकी की जो इंडिजिनियस गेम्स है, आगा खान ट्रॉफी वगैरह, वो थोड़ा सा रख लेना, वो थोड़ा सेमेट लेवल पे जाता है। दैट थोड़ा सा इंटरनेशनल लेवल पे आपको ज्यादा पूछेगा। दे माइट आस्क यू समथिंग टू डू विद ओलंपिक्स और क्रिकेट और समथिंग लाइक दैट। जब ये पूछते हैं, विंबलडन हो गया, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया, जो भी है राइट, ऑल द इंटरनेशनल स्पोर्ट्स, और जब ये पूछते हैं तब ये नहीं पूछते कि कौन जीता, ये पूछते कि हारा कौन, राइट, द वन हु गॉट डिफीटेड, राइट। तो ये भी चीजें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इस साल कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड वगैरह बनाया होगा, किसी भी एथलीट ने अगर कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया होगा, तो उसके बारे में भी यहाँ पे चीजें आती है। इंडियन सिविक इज गोइंग टू बी ऑन अ लिटिल बिट हाई लेवल। ये इंडियन सिविक जानना, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह जानना, थोड़े रूल्स रेगुलेशन जानना, यूपीसी टाइप ही आता है, अवॉइड मार सकते हो बिंदास। ऊपर की चीजें आप अच्छे से कर सकते हो। ये पूरी की पूरी जो लिस्ट है आपके डैशबोर्ड में आ जाएगी। कुछ चीजें ऑलरेडी आ चुकी है, द टीम इज वर्किंग ऑन इट, वी विल बी हैविंग द एग्जॉस्टेड लिस्ट। उतना कर लोगे, यू शुड बी फाइन। यार पॉलिटी के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैं उसको इंडियन सिविक में डाल दूंगा, सो प्रॉब्ली आई कैन add in a point here that yes you will be having polity also, but polity का भी वही सवाल है। अगर मान लो जो किसान का जो आंदोलन चल रहा है उसका हेड कौन था, राइट, जो बिल्स गवर्नमेंट ने किसान के लिए पास करे थे, उसमें कौन कौन से बिल्स थे, उसको क्या कहा जाता है, वो कौन से सेक्शन के अंदर आता है, सो एंड सो फोर्थ, राइट। तो उसके लिए जो रेजोल्यूशन रखता है वो कितना वोटिंग चाहिए, 2/3 3/4 समथिंग लाइक दैट, वो थोड़ी सी चीजें यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट। फाइन। रेगुलरली फॉलो योर व्लॉग नहीं यार, मतलब यूट्यूब चैनल, ठीक है। थैंक यू भैया फॉर गिविंग अस सच इनसाइट। थैंक्स शुभम किट्टू, थैंक यू सो मच, राइट। फाइन, या हाय, थैंक यू सो मच आयुष। अगर हम चलेंगे आगे, ये जैट का पेटेंट है। यहाँ पे जैट डेफिनेटली आपको क्वेश्चन पूछेगा, मर्जर्स एंड एक्विजिशन, इंटरनेशनल एंड इंडियन लेवल बोथ आपको याद रखना है। आईपीओ भर भर के आए थे इस साल, तो सब आईपीओ देख लेना। डेफिनेटली तुमको ये नहीं पूछेगा कि कौन से दो सेलिब्रिटीज ने नायका में पैसा डाला था, कोई ये नहीं पूछेगा। कोई ये नहीं पूछेगा कि नायका की फाउंडर का नाम क्या है, बिल्कुल भी नहीं। वो लोग ये पूछेंगे कि नायका की जो फाउंडर है वो पहले कौन सी कंपनी में काम करती थी और उसने नायका कब चालू किया, व्हाट इज द डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नायका, राइट। नायका का आईपीओ कितने रुपए का था, राइट, वो पूछा जाएगा। या फिर नायका का सीएफओ कौन है, राइट, वो पूछा जाएगा। या फिर नायका का सेकंड लार्जेस्ट इन्वेस्टर कौन है, वो पूछा जाएगा। पर मुझे लगता है नायका के बारे में पूछेंगे, माइट आस्क समथिंग अबाउट पॉलिसी बाजार, जो आया गया कभी समझा ही नहीं, ऐसा कोई आईपीओ पूछेंगे आपको जहां पे लोगों को आइडिया नहीं था कि यार ये भी आईपीओ आया था, something like that. I mean, you need to be a little smart, when it comes to this. So यही वो चीजें पूछते हैं। And international news में it can be polity, it can be coronavirus, it can be any damn thing that has come. But ये थोड़ा ज्यादा हो जाता है because इसका जो width है वो बहुत ज्यादा है। आप कितना कर करके करोगे यार, तो इंटरनेशनल न्यूज अगर आपने थोड़ा कम कर दिया तो भी चलेगा। योर टारगेट शुड बी अराउंड अबाउट 10 to 11 क्वेश्चंस, शुड बी फाइन। अगर मैं कट ऑफ्स के बारे में बात करूं, ये मेल फीमेल का कट ऑफ होता है, ये हर साल चेंज होता है गाइस। आई एम गिविंग यू अ बॉलपॉक नंबर कि दिस इज व्हाट यू शुड गन फॉर। 95 इज व्हाट फॉर मेल फॉर बिजनेस मैनेजमेंट। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम। नाउ बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में मैं ज्यादा बात करता हूं बिकॉज़ बिजनेस मैनेजमेंट इज दैट प्रोग्राम which can give a real good tough fight to ABC, okay, to ABC. And remember, people who are giving CAT or people who have taken CAT and have done amazing job, they will also be going for XAT, because earlier XAT में ऐसा होता था, खाली एक्सेल बोला तो एचआर के बारे में बात होती, which is HR, Human Resource Management. But now people know that कि अगर मेरा ABC नहीं होता है, मैं भी जेम हूं या फिर प्रोफाइल नहीं बैठा या फिर रिजेक्शन मेरा हो गया, अगर मेरा ABC नहीं होता है, then Axelara is a B school or probably FMS अगर नहीं होता है, so Axelara is a B school which can give me same exposure, same placement, same sort of profile, same sort of job role, same sort of designation which ABC folks are getting. I have a student, she actually got 99.50 plus last year in XAT. मेरे ख्याल से 80 she got. She converted Axelara last year, but she wanted to defer the admission. Can I go for it next year because कोरोना वगैरह भी था, बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी थी। बट Axelara never defers the admission. लेना है तो लो, नहीं तो मत लो। जैसे ABC defer करता है, Axelara नहीं करता। So she for the fact gunning for ABC only. She's making good money now. She's working also. So she did not select Axelara. तो ये भी चीज आपको याद रखना है कि Axelara के लिए भी कंपटीशन होगा, rather XAT के लिए भी कंपटीशन होगा। On the other hand, there are students जिनका CAT खराब हो जाता है and they don't have any other option. सीमेंट बहुत दूर है, so they are gunning for जिम, they are gunning for Great Lakes, they are gunning for TACME, they are gunning for KG सोमैया। और ये जो कॉलेजेस है ना, वो 75-80 परसेंटाइल पे आ जाते हैं, वो लाना कोई बड़ी बात नहीं है। 20-22 स्कोर अगर आप लेके आते हो तो आपका राउंड अबाउट 80 प्लस आराम से चले जाता है।
36 पे आपका 99 बैठा है, आप समझ रहे हो, 36 पे आपका 99 बैठा है। तो यार यहाँ पे आपको एडवांटेज मिलता है एक्चुअली एग्जैक्ट एग्जाम देने के लिए। तो ये एग्जाम टफ है, ये एग्जाम इजी भी है, हर एक का अपना अपना पर्सपेक्टिव है। अगर आपके पास स्ट्रैटेजी नहीं है, अगर आपको पता नहीं है पढ़ाई कैसे करे, सेम चीज जो आपको गोली दिया था राइट, कि आप तो इंजीनियर हो एंडेड में कर लोगे, ऐसा हमें भी कहा था हमारे जमाने में यार ये हो जाएगा, ऐसा नहीं होता यार। एप्टीट्यूड टेस्ट को आपको बड़े एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ना पड़ेगा, एक हैबिट में पढ़ना पड़ेगा। एज अ मेंटर दैट्स माय जॉब टू टेल यू हाउ डू यू स्टडी, बट अगेन इट शुड बी टू वे राइट, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। चलो आगे प्लान करते हैं प्रेप स्ट्रैटेजी के बारे में। आपको क्या करना है प्रेप स्ट्रैटेजी का, या हाई सो प्रेप स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए। गेट स्टार्टेड विद दैट एज अर्ली एज यू कैन। ठीक है, आपका कैट नहीं अच्छा गया, आईएफटी अच्छा नहीं गया, एक सिंपल सी बात है, देखो इट इज इजी टू से ऑल दिस थिंग्स, बट द ओनली थिंग दैट आई एम टेलिंग यू टुडे इज दैट 10 दिन के बाद जब आप पीछे मुड़ के देखोगे, या 15 दिन के बाद जब आप पीछे मुड़ के देखोगे, आपको लगेगा कि शिट यार मैंने 10-15 दिन फालतू में बर्बाद करे। मैं कुछ नहीं करता था, मैं उठता था, मैं खाली कैट के बारे में सोचता था, आईएफटी के बारे में सोचता था, एंड आई शुड मोन अबाउट इट। शायद से मैं दैट अगर वहां पे पिकअप कर लेता तो मेरा बहुत ज्यादा भला होता, बिकॉज दैट इज एन एग्जाम व्हिच हैज द एबिलिटी टू गिव यू टॉप नॉच बी स्कूल, मीडियम लेवल बी स्कूल आल्सो, राइट। सिंपल सी बात है। तो जितना जल्दी आप स्टार्ट कर सकते हो उतना जल्दी करो। आई वुड से आपका पर्सपेक्टिव थोड़ा चेंज करो, थोड़ा सेल्फिश यहाँ पे बन सकते हो। ठीक है, मुझे एमबीए करना है, मुझे टॉप नॉच बी स्कूल में जाना है, क्या आईआईटी एक जरिया है, क्या फक्ड अप कोई बात नहीं, आईआईटी स्टूड अप कोई बात नहीं, दैट्स ओके। दैट इज द अनदर वे आउट, दैट एक और जरिया है मेरे लिए which can help you to get into top notch B school, so let me grab that opportunity। बाकी के लोग, मैंने कैट के बारे में भी यही कहा था, कैट के बाद आई टोल्ड यू गाइस राइट, बाकी के लोग टेंशन में रहेंगे, स्लॉट 1 स्लॉट 2 स्लॉट 3 का कंपैरिजन करते रहेंगे, सोचते रहेंगे मेरा टफ था कि तेरा स्लॉट टफ था। बट जो बच्चे ने बुक्स उठा लिया मंडे से और पढ़ाई कर ली एफटी की, आज वो बच्चा अच्छा खासा बैठा है, ही इज गॉट द बेनिफिट राइट। ट्रीट ऑल सेक्शंस इक्वली। बाय द वे, जब आप जैट के लिए पढ़ाई करते हो, फॉर द फैक्ट थोड़ा सा लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऊपर होता है, आप हर एक सेक्शन को इक्वली ट्रीट करना जरूरी है। ये एग्जाम इजी है टू स्कोर 90 परसेंटाइल, बट ये एग्जाम टफ हो जाता है टू गेट इनटू द 95 प्लस प्लस वाला कैटेगरी। 90 पे भी बहुत सारे कॉलेजेस आएंगे गाइस, सो डोंट वरी अबाउट दैट। नाउ अंडरस्टैंड दिस, खाली मेहनत करना जरूरी नहीं है, उसके साथ स्ट्रैटेजी लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे जो आईआईटी के प्रेडिक्शन थे वो सही हुए, जो कैट के प्रेडिक्शंस थे वो स्पॉट ऑन हुए, जैट की भी लास्ट ईयर के प्रेडिक्शंस मेरे सही थे। ये ऑलवेज टचवुड बाय गॉड्स ग्रेस, एकेडमिक नॉलेज थोड़ा अच्छा है तो मेरे प्रेडिक्शन स्पॉट ऑन लगते हैं। आईआईटी के लिए भी मैंने कहा था स्कोर ऑप्टिमाइजेशन ही आपको करना है, एंड आई मीन अगेन नॉट ब्रैगिंग, बट C2C was the only institute who did a video, live video on YT saying that what if your exam is on a moderate to tough level, and वो एग्जाम मॉडरेट लेवल पे आया था। कैट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। स्ट्रैटेजीज वगैरह जितनी भी चीजें हैं, यू कैन लीव इट अप टू मी, आई टेक केयर ऑफ दैट। आई ओनली नीड अ प्रॉमिस फ्रॉम योर साइड इज दैट सर यू टेल मी हमें ये चीजें करना है, हम दिलो जान से उसके लिए मेहनत करेंगे, हम झोंक देंगे। माय स्ट्रैटेजीज, माय फंडामेंटल्स, माय आइडियाज, the way you should study for the examination, everything will be told to you by me, Manohar, and there are others. So we have this alumna, she will also be joining in, she is XLRI pass out. There are certain students, they scored 99.50 last year, they will be coming on board, sharing their strategies with you. पूरा का पूरा आपको एक इकोसिस्टम बनाया है जहाँ पे आपको सब हेल्प मिलेगा। So we are actually launching the program from 7th, which is मेरे ख्याल से Tuesday. So Tuesday से we are launching this program। यहाँ पे आपके लेक्चर्स लगेंगे 2 घंटे के, 1.5 से 2 घंटे के आपके लेक्चर्स है। डैशबोर्ड पे बहुत ज्यादा वीडियोस हम अपलोड करने वाले हैं। डिसीजन मेकिंग विल बी टॉट बाय मी प्रेडोमिनेंट, लाइक मैं ही वो डिसीजन मेकिंग के पूरे सेशन आपके लूंगा। DI will be taught by Shanky and Manohar, Quants will be taught by Shanky and Vaibhav sir। So there is pool of faculties will be helping you, even Pooja will be chipping in, she got around about 95 percentile for her ZAT, she's an IIM Kozhikode now। So she will be helping you guys with this, right? तो ये चीजें थोड़ी याद रखना, खाली मेहनत करके फायदा नहीं होगा। स्ट्रैटेजी इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। आगे चलेंगे। गेट इम्प्रेसिवली स्ट्रांग विद डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग इज दैट सेक्शन, even if you screw in your verbal and quant and DI and whatever, right, GK, ये तुम्हारा जो एक सेक्शन है ना 99 वाला, ये तुमको राउंड अबाउट 85-90 प्लस लेके जाएगा। रेडलेक्स आ जाएगा, केजे आ जाएगा, टैप में आ जाएगा, जिम आ जाएगा, 4 आ जाएगा, बाकी सब भी स्कूल आ जाएंगे जो कैट से नहीं आ सकते हैं, राइट। और सीमैट के लिए इन लोगों का यार बहुत हाई कट ऑफ है, राउंड अबाउट 98-99, तो वो भी आना थोड़ा सा टफ है मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए, इसको मत भूलना। अगेन सेक्शन स्ट्रैटेजी क्या होगा, एक सेक्शन हमें लेना है, एक सेक्शन हमें लेना है। लैब स्ट्रैटेजी रियली हेल्प्ड इन टुडे इन आईएफटी। मैंने भेजा शिखर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर कंफर्मिंग। हर एक स्ट्रैटेजी स्वेयर बाय इट, ट्रस्ट मी,
इट विल वर्क फॉर यू। अगर वो स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करेगी, वो स्ट्रैटेजीज में बनाता ही नहीं, ना ही वो स्ट्रैटेजी में बताता हूँ बच्चों को। आई ट्राइड बाय माई सेल्फ फर्स्ट, आई ट्राइड विद माई टॉपर्स, वंस इट्स डन एंड डस्टेड आई सॉर्ट ऑफ यू नो ओपन इट टू द वर्ल्ड, राइट। सो अगेन एक सेशन में आपको टॉप नॉच चलना है, दैट्स गोइंग टू बी डिसीजन मेकिंग। एक सेक्शन में आपको मीडियम लेवल पे रहना है, इधर इट्स गोइंग टू बी क्वांट डीआई और वर्बल, दोनों में से एक पकड़ लो। और एक सेक्शन है बेटा जहां पे हमें थोड़ा कट ऑफ के ऊपर खेलना है, यू आर डन एंड डस्टेड फॉर योर एग्जाम। ट्रस्ट मी, यू आर डन एंड डस्टेड फॉर योर एग्जाम। बच्चे शॉक होते हैं कि सर मेरे को 92 पे कॉल आया, किसका? एक्सिलर का। सर मेरे को 93 पे कॉल आया, एक्सिलर का, एचआर का। जब ये कॉल जरा चालू हो जाएगा ना, ट्रस्ट मी, यू विल हैव दैट स्माइल ऑन योर फेस, बिकॉज़ एक्सिलर जमशेदपुर है, एक्सिलर न्यू दिल्ली है, XIMB is there, XISS is there, you've got so many other B schools। एक वीडियो बनाऊंगा मैं उसके ऊपर भी। तो गाइस ये मेहनत आपकी रंग लाएगी तब, राइट। रिवाइज क्या कंसेप्ट्स पहले, अगर आप मेरे बच्चे हो, जितने डैशबोर्ड पे वीडियो से एक बार रिवीजन कर लेना, एंड द गेम इज ऑन। आगे बढ़ेंगे, फोकस मोर ऑन कंसेप्ट्स गाइस। कंसेप्ट्स बहुत मैटर करती है, कंसेप्ट कंसेप्ट कंसेप्ट, दैट कंसेप्ट के एप्लीकेशन पे है, राइट। आई डोंट वांट टू फूल यू बाय सेइंग दैट बहुत इजी है, कर लेगा, ऐसा नहीं होता। एग्जाम का लेवल है, अगर मैं कहूंगा जैट बहुत इजी है तो मैं एक्चुअली आई एम अब्यूजिंग जैट। जैट एक अपना ऑरा है, एक अपना लेवल है, बट हाँ एग्जाम इजी है। कौन से लेवल पे? 3 घंटा है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने वाले जो है वो कम है, कैट से कम क्वेश्चंस करने हैं, राइट। मार्क्स ज्यादा मिलते हैं, कंपटीशन कम है, 70-75,000 लोग बच्चा लोग एग्जाम देता है, विच इज 1/3 ऑफ योर कैट एग्जाम, राइट। फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव जैट इज इजी, समझा। जैट के भाव अलग है, डोंट वरी अबाउट इट, राइट। सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स। प्रीवियस ईयर पेपर हम सॉल्व करा के लेंगे आपसे 2021, 2020, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 12 जितने भी क्वेश्चंस है, we will be doing them step by step. Along with that, there will be concept videos. Also, there is going to be a score booster. Score booster जो हमने लॉन्च करा है इस साल, जहां पे आपको 9,000 क्वेश्चंस मिलते हैं, हम ये भी सॉल्व कराएंगे आपके लिए, एंड दैट इज द रीजन जो क्रैश कोर्स है हमारा जैट का। इनिशियली गाइस ये 1.5 घंटे का होगा, इवेंचुअली 10 दिन के बाद मैं इसको पिकअप करूंगा, इसको 2-2 घंटे लगाऊंगा, और ये डेली बेसिस पे होगा, बिकॉज दैट इज दैट एग्जामिनेशन जहां मुझे लगता है बहुत ज्यादा बच्चे लोग अच्छा कर सकते हैं। तो दैट हम कैट लेवल पे ही करेंगे। तो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 7th of December। पहला एक वीक 7 दिन आपके लेक्चर्स 1.5 आवर्स के रहेंगे, उसके बाद सीधा 2 घंटा चलेगा आपका। तो दैट चलेगा 2 घंटा, उसके बाद हम स्नैप के लेक्चर्स भी करवाएंगे, स्नैप एंड एनमैट भी चलेगा। तो थोड़ा भी सेग्रीगेशन होगा, दैट एक अलग लेवल पे चलेगा, स्नैप एंड मैट सीमैट एक अलग लेवल पे चलेगा। इफ यू वांट टू जॉइन अस फॉर नॉन कैट, इट्स अ कंप्लीट प्रोग्राम फॉर नॉन कैट, जहां पे वी डू स्नैप एंड मैट, जैट, सीमैट, टेस्ट ऑल दिस एग्जाम्स। सो यू आर मोस्ट वेलकम। बट या आई वांट टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू कि हाँ ये डुएबल है, ये क्रैकेबल है, ओनली इफ यू give me your time and your dedication, then we will make it a point that we 4 to 5. Last year decision making topper was 99.98, overall topper was 99.80, and we have multiple students scoring 99.50 plus plus. Again उनको जो strategy बोला था वही मैंने यहाँ पे आपको बताया है। Kick start your preparation with ZAT, don't worry about anything else. We will have DM classes, हाँ दीपेंशु, तो decision making classes will be taken by me only. I will be doing round about last 10 साल के जितने भी मेरे वीडियोस है, आप देख लेना। लास्ट ईयर जो मैंने वीडियोस करे थे वो ऑलरेडी अवेलेबल होंगे। इस साल कुछ और नया कंटेंट करेंगे, सो कंटेंट कभी रिपीट नहीं होगा, दैट इज माय गारंटी। कंटेंट विल नॉट गेट रिपीटेड, दैट्स माय गारंटी। विल बी डूइंग न्यू क्वेश्चंस, विल बी डूइंग स्कोर बूस्टर, विल बी डूइंग मॉक्स आल्सो। Even mock strategy lectures are lined up, but we will be doing them towards the end of December. So this is the wholesome program for you guys. If you're keen on that, you want to join, you can join us. But again, even if you're studying with any other institute or any other coaching institute, make it a point that आप ZAT के लिए बहुत serious approach करो। हल्के में मत लेना, हाँ जितना लगता है, जितना easy होता है, बताते हैं करते हैं, उतना हल्के में मत लेना। हसल मारोगे, ZAT doable है। That's all from my side, guys. I hope this session helps you. There will be a couple of more videos tomorrow back to back on ZAT front, because can't cover everything in 30 minutes video. So yeah, if you're not subscribed, kindly subscribe and stay tuned to Seduce Mentors. That's it from my side, guys. Have a good night, take care of yourself, and go for a kill. ZAT is there. Bye bye. Bye guys. Bye.